So, welcome all of you to Friday Fiesta on this 45th session. And what is Friday Fiesta? डबल मजा है और नो दाम, डबल मजा है और नो दाम, फ्राइडे फिएस्टा जिसका नाम प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती भगवान अंकल के साथ, जो आज नहीं है भगवान अंकल, आज बिजी है भगवान अंकल, ऑक्यूपाइड है, कहीं और उनका अपॉइंटमेंट है। सो प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, फ्राइडे फिएस्टा आना आप, प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, फ्राइडे फिएस्टा आना आप। फ्राइडे फिएस्टा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मिरर वर्क के ऊपर कि व्हाट इज मिरर वर्क and how do we do it and what are the benefits of mirror work and what how we can evolve ourselves, our spiritual practices, and increase our self love and self dose through mirror work. So are you all ready? So let us begin. But before we begin, let us just have a small centering and small meditation. क्योंकि पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद जब हम आते हैं, so we need a little centering. So today Bhagwan Uncle's laughter will not be there today, but we will begin with meditation. So I will request all of you to please close your eyes. Take a deep breath. It's quite hot. Let's begin with the music. And I request all of you अपनी गर्दन सीधी, पीठ सीधी, और जहां पर भी बैठे हैं आराम से बैठ जाएं and just relax ourselves. Drop your shoulder, relax your neck, relax your shoulder, and allow yourself to settle down. Allow yourself to settle down. Take deep breaths. लंबी गहरी सांस। और जैसे हर एक सांस हमारे भीतर जा रही है, we express our love to this cosmos. I love you. जैसे ही हमारी सांस हम बाहर फेंक रहे हैं, we breathe out. We declare to the universe, I thank you. हर एक सांस के साथ हमारा सिमरन चलता रहे। I love you. I thank you. I love you, which is indicating that I am pumping love in my body, in my consciousness. Apart from oxygen, which is energizing my body, I am also breathing in love. I love you. I love you. I love you.
and breathe out gratitude. I thank you. I thank you. I thank you. I love you and I thank you. उसी का सिमरन चलता रहे. I love you and I thank you. उसी का सिमरन चलता रहे. हर एक लंबी गहरी सांस हमें हमारे आत्मा के साथ जुड़ रही है. Breath is the bridge to connect with our Atman, with our soul. I love you and I thank you का सिमरन चलता रहे. Thank you, my universe, for gifting all of us this amazing opportunity to go within and to find the true treasures. Thank you, my universe. Thank you, my divine. For invoking self-love inside all of us, for awakening us from slumber. हमें नींद में से जगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. And we are open to receive everything from this session. We are so grateful to everything, to technology, to internet, to our gadgets, to electricity, to the space where we are sitting, to our body which is healthy today. We are so much grateful to the room, to our family who is supporting us and offering us the space for ourselves, for time that which I have given priority to this program, and I am attending this program as my every Friday commitment, as my ritual. So I am thanking my own self, my body, time that I am provided. I have this time to invest in me. Thanks to all the mentors, teachers, gurus, acharyas, angels. Thank you. Thank you, Louise Hay, for introducing all of us to this work and her philosophy of self-love. Thank you. Thank you. Thank you, and I love you. I love you. I love you. चेहरे पे एक मुस्कान, धन्यवाद की वो फीलिंग्स, चेहरे पे एक मुस्कान. Thank you and I love you. Thank you and I love you. I'm open to receive everything from this session. मेरे मन की, तन की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आत्मा की उन्नति के लिए मैं यह प्रोग्राम से सब कुछ पाने के लिए तैयार हूँ. सब कुछ अपने अंदर भीतर ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ. And I'm ready to receive the knowledge. I'm ready to practice this knowledge. I'm ready to change my perception. Thank you. Thank you. Thank you. And I love 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 you.
Slowly and steadily, we will come back to this space. And slowly and steadily, open our eyes. So, welcome all of you. Welcome, all of you for this beautiful session. And today we are going to work about mirror work. I would like to ask all of you that क्या आपने मिरर वर्क के बारे में पहले कुछ सुना है, पहले उसको प्रैक्टिस की हुई है? आप में से किसी ने भी इसकी प्रैक्टिस पहले की हुई है? नहीं की हुई है? कितने लोगों ने की है मिरर वर्क की प्रैक्टिस? कितने लोगों ने मिरर वर्क के बारे में जानते हैं और मिरर वर्क की प्रैक्टिस की है? Okay, nobody is answering me. Disha, okay, Disha has practiced it. Okay, so Rashmi, I am muting you. I have to mute all of you. So if you want to share anything or ask anything, you can raise your hand, and and then we will unmute you. Okay, yeah. So, what is mirror work and why Louise Hay has promoted this mirror work? Now, how many of you are aware of Louise Hay and her life and her philosophy? Are you all aware of Louise Hay? Are you all aware of her life story? Yeah, Shilpa says that she is aware of her. Disha must be aware of it. By the time Naresh ji also must be aware of it. क्योंकि उन्होंने इतने समय से जो सेशन सुन रहे हैं उसमें बहुत बार मैं लुइस हे के बारे में बताती हूँ, तो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. Okay, so this is the mirror and we all need this mirror today and we are going to do mirror work today practically also. एंड लुइस हे के बारे में मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी. तो उनका बचपन से लेके उनके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे. बहुत बार उनको वर्बली बहुत बार अब्यूज़ किया गया था उनके परिवारजनों से, उनके पिता से. बहुत बार उनको फिजिकली अब्यूज़ किया गया था एंड वो रेप के भी विक्टिम्स बने थी बहुत बार. 8 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले सुबह सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया था बिकॉज वो ज़िंदगी से कंटाल गई थी. And at the age of 15, 16, she decided, 15 years, she decided to leave home and run away from home because she was really, literally abused by her father also and many other people also. So, and then by the age of 16, she became mother also, mother of a child. But of course, she gave that child in order to a couple who really wanted, were seeking for a child. सो उसके बाद उनकी ज़िंदगी में मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे लोग आए जिन्होंने उनको इस्तेमाल किया और छोड़ दिया. शादी भी हुई, शादी के कुछ सालों के बाद वापस डिवोर्स हो गए. एंड व्हेन शी वाज इन द एज ऑफ 40 प्लस इयर्स, शी वाज लिटरली ऑन द रोड एंड आस्किंग यूनिवर्स दैट व्हाई मी एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी. और उसके बाद शी केम अक्रॉस अ फिलोसॉफी, चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस, और जहाँ पर उनकी वार्तालाप हुई और जो मेंटर थे वहाँ पर, एरिक नाम के मेंटर थे, और उन्होंने कहा कि योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी एंड इफ यू चेंज योर थॉट्स योर रियलिटीज आर ऑल्सो चेंज. यू विल चेंज इफ यू change your beliefs, your reality will change. Initially she was taken aback, but then she thought, up till now nothing has worked in my life so much, then why not try it? And that's how she began trying it, and she really started working on herself, knowing her beliefs which are not working for her, discovering her patterns which are not working in her life, and that's how she could make a huge difference in her life. And after 2-3 years of practice, she became a victim of vaginal cancer. And that time, doctor told her to get operated, but she refused and she didn't want to. And then she said that I will do my own healing through my work because I really trust my work. And that's how 6 months she began working on herself. So what did she work on herself? ऐसा क्या हुआ 6 महीनों में उन्होंने क्या काम किया? So
she of course worked on these 4 principles of self-love, self-acceptance, self-approval and forgiveness पे भी काम किया उन्होंने, gratitude पे भी काम किया. Besides that, उन्होंने मिरर वर्क किया और उन्होंने इनर चाइल्ड हीलिंग किया अपने आप पे. 6 महीना लगातार जब उनकी प्रैक्टिस वो चालू रही, एंड विद द रिजल्ट शी कुड हील हर ओन कैंसर. एंड देन जब उन्होंने अपना कैंसर हील किया, लोग उनको पूछने लगे कि ऐसा आपने क्या किया कि आप बिना ऑपरेशंस और कीमो एंड ऑल यू कुड हील योरसेल्फ. एंड दैट्स वेयर she suggested all these techniques. She could develop a workshop, 2 day two full day Heal Your Life workshop, in which she has described all these techniques and she explained people all these techniques. And yeah, but people were asking for more, and that's how she wrote the book. Her first book, which has come in the publication, is You Can Heal Your Life. This is the book where she wrote this book. And once this book was out in the market, it was a big dhamaka. For 6 consecutive weeks, it was the best selling book of New York Times. And yeah, and then there was no looking back. People from various parts of world, all over the world, they were looking for this book, who couldn't attend personally physical workshops. And then they followed this book, and this book has become Bible for them to change their life. And it has really worked wonderfully well, and trillions of people have benefited from this book. So ये book कम से कम 60-70 countries में अवेलेबल है. कम से कम 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ये बुक छपी हुई है. अपने इंडिया में भी हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी भाषा में ये किताब लिखी हुई है. आई एम नॉट श्योर ऑफ मराठी, बट हिंदी, गुजराती, पंजाबी में तो ये बुक लिखी हुई है. सो शी जो है, उन्होंने ये किताब इतनी धमाका किया कि 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में भी ये लिखी गई है. सो लोगों ने इसको अपनाना शुरू किया. तो आज हम स्पेसिफिकली बात मिरर वर्क पे कर रहे हैं कि उन्होंने जो 6 महीना लगातार अपने आप पे मिरर वर्क पे काम करने से, मिरर वर्क के द्वारा अपने ऊपर जो काम किया और उनको जो बेनिफिट हुआ. सो लेट अस नो दैट व्हाट इज इट एंड हाउ शी डिड इट एंड व्हाट शी डिड इट, so that even we can apply it in our life. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनवाइट करती हूँ कि प्लीज पिक अप द मिरर. एंड सबके पास मिरर है? कैन यू शो मी योर मिरर? सबके पास मिरर है? कैन यू शो मी योर मिरर? वंशिका मिरर लेके आइए, जोनेजा जी मिरर लेके आइए, शिल्पा, मंजीत. हु इज आईफोन? वंदना, सीमा एंड डेल, ऑल ऑफ यू मिरर लेके आइए अपना अपना, सब लोग. एंड आई होप दैट आप सबके पास अभी मिरर है. और अगर आपके पास मिरर है, देन होल्ड दिस मिरर इन योर हैंड. सेकंड या थर्ड ड्रॉर में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा मिरर. मिला? ओके, या. सो मिरर सबके हाथ में. पेन यू जस्ट शो मी द मिरर. या, थैंक यू. या, सो नाउ मिरर को अपने हाथ में पकड़ना है. कम से कम 1 फीट की दूरी होनी चाहिए. अगर चश्मा पहना है तो चश्मा आप निकाल सकते हैं, और चश्मा निकाल के आप मिरर में अपने आप को देखोगे और अपनी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे. And just look at the mirror, look into your eyes deeply. And now tell yourself, अपना नाम लेते हुए आप अपने आप को बोलेंगे, श्रेया आई लव यू. आप अपना नाम लोगे और रिपीट करोगे.
Shreya, I love you. Shreya, I love you. Shreya, I love you. Shreya, I love you. Shreya, I accept you just the way you are. Shreya, I accept you just the way you are. आप अपना नाम लेते हुए बोलेंगे, I accept you just the way you are. तुम जैसे भी हो मुझे प्यारी हो श्रेया, तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें अपनाती हूँ. 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 मैं तुम्हें प्यार करती हूँ. And keep looking into your eyes. Keep looking into your eyes. And now put your mirror down. And now I want to hear from all of you, what is your experience? What is your experience? Were you able to look into your eyes? Yes, you can nod your head. Yes, were you able to look into your eyes? Were you able to tell yourself that, yes, I love you? Yes. Thank you. Thank you, Manjit, for responding back. Then, when you said that I love you, did you feel the love for yourself? What was the first response, or was it reaction? See, the more you are going to share, the more you are going to get benefits. I will just explain you the theory, and there's no fun just listening to theory. Let's come to an experiential level. That what happened when you looked in the mirror? क्या हुआ, कैसा लगा जब आपने अपने आप को आईने में देखा? तो कैसा लगा? क्या आपको लगा कि हाँ मैं अपने आप को प्यार करती हूँ? क्या आप अपने आप को कह सके कि हाँ आई एक्सेप्ट यू जस्ट द वे यू आर, तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें अपनाती हूँ? And when you repeated this, did you feel it is real, or did you feel it is fake, or it is artificial? Because Shreya is telling us we have to do it, but actually I don't really love myself, or actually I don't really accept myself, and it is difficult to accept myself. What were your what were your experience? I want to hear from you. Yeah, Shilpa, you can unmute yourself and you can share. Hello. Yeah, please. Yeah. Yes, so I felt it was real. And though I could see my physical self, I felt it was more at a soul level for me. And that's what I felt. Beautiful, beautiful. That you could connect with your soul Yeah, so more than the physical. beyond the physicality, yes. Beyond the physicality. Okay. Were there any judgments even when you connected with your soul? What were the thoughts? What were the feelings? So I felt like I felt infiniteness at that particular moment. Mm-hmm. Okay. Beautiful. Okay. So there were no judgments, but there were only you could feel the love and you could feel infinite, that you are Yes. infinite.
and that is what you felt. Beautiful. Thank you. Thank you for sharing, Shilpa. What about others? What did you feel? Yeah, Vanshika, what did you feel? Okay, you have never done that before, Vanshika, and you felt guilty. Okay, what is the guilty feeling about? Yeah, Vanshika, what is the guilty feeling is about? You can unmute yourself. When you said that, tell yourself that you I can't hear you. Can you be louder or put your? I'm saying that, like you said, how to tell yourself that I love you. Hmm. So that was little guilty for me because I just told you only that I was like, Your voice is breaking, but I could hear that you couldn't tell yourself I love you and you felt guilty. yeah, Yeah, because maybe you never loved yourself before. yeah. Hmm. Okay, okay, fine. Thank you for being honest and sharing that. Thank you. Thank you, Vanshika. So, anybody else wants to share anything? Manjit, will you want to share anything? Yeah, Shreya. Yeah, boliye. Yeah, like I have started doing it, and today when I was uh, telling that Manjeet, I love you, I I had a face on my smile, and I was enjoying it. Okay, And great. actually, since one experience, another experience is that, like, today I had an interaction with my team lead, Uh-huh. and he was saying that, means you are not able to understand here what is the reason for that. So means now when I am saying that, I am feeling confident, and as you said that I love you as you are, so that brings a confidence in me. And So, in the whole day I was thinking about this motivation also. So it is really relaxing when feel low, when your hormone starts dropping. So I think that time it is very useful. mhm. Okay, okay. Thank you for sharing that. That this time when you practiced, you could feel love for yourself and you were smiling and you felt confident. And at the same time, when you told yourself that I accept you, तुम जैसी भी हो, मैं तुम्हें अपनाता हूँ और मैं अब तुम्हें अपनाती हूँ, जब तुमने ये बताया तो आपको कॉन्फिडेंस फील हुआ and you felt good about it. Thank you very much for sharing, all of you, for sharing your genuine replies and responses. सो बेसिकली मिरर, ऐसा हमने सुना है, बहुत बार सुना है कि आंखें हमारे मन का दर्पण है. देखिए, जब हम छोटे बच्चे देखना, जब भी कुछ छुपाना होगा, कभी कुछ मस्ती की होगी और पता है कि मम्मी की डांट मिलेगी, पापा की, टीचर की डांट मिलेगी, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे छुपा छुपी खेलते हैं अपनी किताबों में. उस समय तो बहुत स्टूडियसली मस्त किताबों में पढ़ाई करेंगे, राइट? या फिर बोलेंगे पेट में दर्द हो रहा है, इधर उधर भाग जाएंगे. आर दे एबल टू, व्हेन दे आर लाइंग, आर दे एबल टू लुक इनटू योर आईज एंड शेयर एंड टॉक विथ यू? नो. और इवन वैसे ही अगर आप, डर भी लगता है, हाँ, सो अगर किसी को झूठ बोल रहे हो, समझो आपको पता है कि ये सच्चाई नहीं है, बट फिर भी आप किसी को कुछ बोल रहे हो, तो आप क्या करोगे? उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलोगे या यू विल अवॉइड जनरली आई कांटेक्ट? We will avoid eye contact. 100% वी विल अवॉइड आई कांटेक्ट. शिल्पा जी, आप अपना कैमरा थोड़ा ना नीचे कीजिए ताकि मैं आपकी दीवार के बजाय आपको ज्यादा दिखूं. या सो सो बेसिकली हम, हमारा जो जैसे बोलते हैं, हमारा ये आंख है, ये मन का दर्पण है. मेरा मन दर्पण कहलाए, ऐसा एक गाना भी है. तो ये जो आंखों के द्वारा हम मन के अंदर जा सकते हैं और मन को अंदर देख सकते हैं, झांक के कि मेरे अंदर भीतर चल क्या रहा है. सो आंखें जो है वो दरवाजे हैं.
तो जब भी अगर मैं ये मिरर में आईने में देख के अपने आप को कह रही हूँ कि श्रेया आई लव यू एंड आई रियली लव यू एंड आई रियली लव यू, बट कई बार वो हो सकता है कि अंदर से एक आवाज आती है अपने भीतर से, क्या झूठ बोलती है, अपने आप पे इतना गुस्सा करती रहती है, अपने आप को इतना छोटा समझती रहती है, और क्या बोलती है कि आई लव यू एंड आई लव यू। सारा झूठ है, सिर्फ आर्टिफिशियली बोलना है इसीलिए तू बोल रही है, तू महसूस नहीं कर रही है। अंदर से एक आवाज आती है। समझो कि मैं अंदर से अपने आप को मिरर में देख के, आईने में देख के बोल रही हूँ, श्रेया गो फॉर इट, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट एंड आई ट्रस्ट यू एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड कम ऑन, यू कैन डू इट श्रेया, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स यही करते हैं ना, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन यू कैन डू इट, मोटिवेशनल स्पीकर वही काम करते हैं। बट अंदर से क्या आवाज आती है? अंदर से आवाज आती है, नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझे फेलियर का डर लग रहा है। ऐसे बहुत सारे भय जो है हमारे सामने आके खड़े रह जाते हैं, और उस समय पे हमें पता चल रहा है कि मैं जो मुंह से बोल रही हूँ वो मेरी सच्चाई नहीं है, जो मैं मुंह से बोल रही हूँ वो मेरी सच्चाई नहीं है, मेरी सच्चाई नहीं है, बल्कि मेरे अंदर कुछ और चल रहा है। सो ये जो आईना है वो हमें हमारे मन की सच्चाई दिखाता है। तो आईने में हम आंखें डाल के इसीलिए ये काम करते हैं। मिरर वर्क का सबसे बड़ा ये है कि अंदर की भीतर की सच्चाई बाहर आए। बिकॉज फाइनली जब हम पैदा हुए थे, वी वर द ट्रूथ, वी वर फुल ऑफ लव, फुल ऑफ इनोसेंस। अगर एक छोटे बच्चे को आप देखोगे, जो 2-3 साल का बच्चा है, उसको हम देखेंगे, वो बार बार मिरर में जाके अपने आप को किस करेगा, छुपा छुपी खेलेगा, अपने आप के साथ डांस करेगा, गीत गाएगा, गुनगुनाएगा, और अपने आंखों के सामने ही करता रहेगा। एंड वो चाइल्ड को कोई शर्म नहीं है, वो चाइल्ड को कुछ भी अंदर, उसके पास कोई इनहिबिशंस नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है। तो वो बच्चा जो है पूरे निर्दोषता से वो उस मिरर में अपने आप को देख के अपने ही दुनिया में खो जाएगा। वो बच्चा उस समय कोई झूठ बोल रहा है नहीं, वो बच्चे के दिल में झूठ है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि वो झूठ होता क्या है। Because that child who is 2 or 3 years old, that child is living in the truth itself. That child is loving the life. That child, does that mean that that child does not cry? That child cries. Does that mean that child does not get angry? That child gets angry. But in spite of that, feeling all the emotions, still that child is truthful. That child, जो हमारे भीतर का बच्चा है, वो अपनी सारी इमोशंस के लिए ट्रूथफुल है, एंड इसीलिए वो बच्चा पावरफुल है, इसीलिए वो बच्चा निर्दोष है। तो हमारे अंदर की वो फीलिंग्स के साथ वो बच्चे को तब तक वो नहीं पता है कि मुझे हमारी फीलिंग्स को छुपाना है। तुम्हें अंदर से कुछ और लगे, लेकिन तुम्हें बाहर से कुछ और दिखाना है, वो उस बच्चे को तब तक नहीं पता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है ना, फिर वो बच्चा बोलेगा कि चलो मुझे बिस्किट खानी है, और माँ ने या पिताजी ने बोल दिया कि नहीं मिलेगी बिस्किट, तुम जाओ एक कोने में जाके बैठ जाओ, तुम्हें बिस्किट नहीं मिलेगी। क्यों? क्या ये रोना धोना लगा के रखा है बिस्किट के लिए, और तुम्हें बिस्किट नहीं मिलेगी अभी, या जो भी हो खिलौना नहीं मिलेगा। सो अभी ये बच्चा सहम जाता है, और अभी ये बच्चा देखता है कि अच्छा, मतलब मैंने जो मांगा वो गलत था और मुझे ये नहीं मांगना चाहिए। उसको गुस्सा भी आ रहा है, वो गुस्सा दिखाता है, तो भी उसको बोला जाता है कि चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाओ, एंड वो बच्चे को अकेला छोड़ा जाता है, या रोता रहता है तो भी उसको अकेला छोड़ा जाता है। नाउ दिस चाइल्ड विल अंडरस्टैंड कि मुझे मेरे अंदर का गुस्सा छुपाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वो गुस्सा व्यक्त भी कर रही हूँ तो कोई दाल गलने नहीं वाली, कोई माँ बाप मेरा सुनता नहीं है, और वो और भिड़ते हैं और झगड़ते हैं और मुझे कहते हैं कि ये क्या नाक में दम करके रखा है। एंड नाउ दिस चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट मेरे अंदर जो भीतर मुझे लग रहा है उसको मुझे एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं है। एंड नाउ इफ आई वांट माय लव ऑफ माय पेरेंट्स, I have to hide my feelings. I have to hide my truth.
मेरी सच्चाई को मुझे छुपाना पड़ेगा, और मुझे माँ बाप का प्यार मिलने के लिए अंदर से मुझे कुछ भी लग रहा हो, बाहर से मेरी जवाबदारी बनती है कि माँ बाप को खुश रखूं। एंड विद द रिजल्ट, इस छोटी उम्र से अभी ये बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, अपने अंदर की सच्चाई को छुपाना शुरू कर देता है। And then now the child has lost the innocence. Now the child is कि okay, I will be judged. अगर मैं सच्ची बात बताऊंगी कि मुझे बहुत गुस्सा आया है, तो I will be judged. I will not be loved. I will not be accepted. And with the result, ये जो बच्चा है वो अपने आप की, अपने अंदर की, अपने भीतर की सारी इमोशंस को छुपाना शुरू कर देता है. And now there is a layer. And this layer are the layers, are judgments one upon एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हम बांधे जाते हैं. आज देखो ना आप कितने लोग, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और अगर आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्या आप खुलेआम बता सकोगे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं और मुझे डर लग रहा है? हम पूरा मास्क पहनने की कोशिश करेंगे, अंदर से कुछ भी होने दो, हम पूरा मास्क पहनने की कोशिश करेंगे कि हाँ मुझे डर लग रहा है, मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंट हूं. और इस तरह से हमने ना अपनी जिंदगी मास्क पहनते हुए ही निकाली है और मास्क पहन के ही घूम रहे हैं. मेरे भीतर जो चल रहा है उसको मैं भी देखना नहीं चाहती हूँ. दूसरे तो छोड़ो, मैं खुद भी देखना नहीं चाहती हूँ. अगर मुझे अकेलापन लग रहा है, अगर मुझे लाइफ में बहुत कंटाला आ रहा है, अगर मैं लाइफ में उदास हूँ, मैं खुद भी उसको देखना नहीं चाहती हूँ. ज्यादा करके हम क्या करते हैं? When your mind is restless, when you are in anxiety, when you are feeling sad, what do you do generally? अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं, right? What else do we do? अपने आप के लिए बुरा सोचते हैं, अपने आप के लिए बुरा सोचना शुरू करते हैं कि तुम्हें ओवर क्या. ओवर थिंकिंग भी करते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म, इनर वॉइस बहुत चलेगा उस टाइम पे. राइट, या सो ये जो है अपने अंदर एक सेल्फ टॉक कंटिन्यूस नॉन स्टॉप नॉनसेंस चालू हो जाएगा और वो अपने आप को कोसना शुरू कर देगा. राइट, अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा. एंड देन आपको अपने आप पे इतना गुस्सा आ जाएगा कि यू वांट टू रन अवे. And then then we use all the coping mechanism. And what are those coping mechanism? We will go on social media very often. We will go to Netflix. We will use smoking or drinks or alcohol or excess food to cope that. We will use gossiping. लोगों को फोन उठा के गॉसिप करना शुरू कर देंगे और लोगों को कंप्लेन करना शुरू करेंगे. अभी अपने अंदर की सच्चाई से हम भाग रहे हैं और हम उसी को देखना नहीं चाहते हैं. एंड वी वांट टू जस्ट इट्स लाइक उसको एक कमरे में बंद कर दो. एंड आई डोंट वांट टू सी माई सेल्फ. एंड दैट इज द शैडो सेल्फ ऑफ अवर सेल्फ. इट इज कॉल्ड शैडो सेल्फ इन साइकोलॉजी. तो हमारे शैडो सेल्फ से हम हमेशा भाग रहे हैं. तो आप लोग अपनी ही लाइफ में गौर फरमाइए कि कितनी बार आप अपने आप से भाग रहे हो. कौन कौन से सिचुएशन में आप अपने आप से भाग रहे हो और बार बार आपको फोन लगता रहता है कि व्हाट्सएप में क्या नया मैसेज आया या इंस्टाग्राम पे कौन सी नई रील आई. और बार बार हमें यह लगता है. राइट, सो नाउ at that time when you are feeling restless, when you are in sadness, when you are in anxiety, when you are into overthinking, when you are feeling sad, when you are feeling angry, at that time make mirror as your friend. And then what we do when
I pick up the mirror. If suppose if I am sad and I'm looking into my eyes and I validate my feelings that yes श्रेया, मुझे पता है कि तुम बहुत उदास हो, तुमको बहुत अकेलापन लग रहा है और शायद तुम बहुत हर्ट भी हुई हो। हाँ, क्यों हुआ, क्या हुआ? हाँ, आप तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। तुम्हें शायद ऐसा भी लग रहा है श्रेया कि लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम्हारे अपने तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और तुम्हें बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारे कजिन्स को प्रमोशन मिल गया, उनको फायदा हुआ, तुम्हारे कलीग्स को प्रमोशन मिल गया, तुम्हें नहीं मिला और तुम्हें बहुत दुखी लग रहा है और तुम्हें लग रहा है कि शायद तुम उतनी कैपेबल इनफ ही नहीं हो या लकी इनफ नहीं हो। और तुम्हें क्या लग रहा है श्रेया? या आई एम फीलिंग वेरी एंग्री, आई एम फीलिंग वेरी सैड। Yes, yes, Shreya, I understand you. Yes, I know that you are feeling sad. I know that you are feeling angry. Yes, but still, Shreya, I am with you and I love you. I am with you and I love you. So, this is how we are acknowledging our emotions. We are not running away from our emotions. No matter whatever is the emotion, आपको इतना गुस्सा आया कि सब कुछ तोड़ फोड़ डालो। अगर उस समय पे आपको इतना गुस्सा आया भी है तो उस समय चिल्लो, चिल्लाओ, चीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन किसी और पे नहीं, अपने आप पे। दिस इज हेल्दी प्रोसेसिंग। अपने आप पे वॉशरूम में जाओ, अपने बेडरूम में जाओ, दरवाजा बंद कर लो और चिल्लाना है चिल्लाओ, चीख लो और सारा गुस्सा बाहर निकाल दो और उसके बाद आईने में अपने आप को देख के बातें करना शुरू करो। और जो भी, जैसे मैं अभी अपने आप के साथ बातें कर रही थी कि ओके, तुम्हें इतने उदास क्यों हुई है, या तुम अगर गुस्सा भी आया है तुम्हें, आईना उठाओ और आईने उठा के थोड़ा चिल्ला के, हम लोग काली फेस करवाते हैं जैसे वो अंकल हंसी मजाक में करवाते हैं, लाफ्टर क्लब में करके करते हैं, वैसे गुस्सा निकालने के लिए हम काली फेस करवाते हैं और काली फेस करते हुए चिल्लाओ ऐसे मिरर में देख के। जब आप काली फेस करके चिल्ला रहे हो आवाज निकाल के, just see, it's a powerful technique to release your anger on the spot. Make faces, पूरी काली माँ बन जाओ, दुर्गा माँ बन जाओ, पूरा शंकर का जैसे तीसरा नेत्र खुलता है और तांडव नृत्य करता है, वैसे मिरर में अपने आप को देखते हुए you immediately release that anger. जब जिस समय पे गुस्सा आ रहा है, अगर उस समय पे आप इमीडिएटली उसको प्रोसेस कर सकते हो, या जस्ट अगर इमीडिएटली नहीं हुआ तो आफ्टर हाफ एन आवर, 1 आवर, आप अगर उसको प्रोसेस करके चिल्ला के सारा गुस्सा बाहर निकाल दो, फिर अपनी आंखों में आंखें डाल के अपने आप से बात करो। हाँ श्रेया, मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख हुआ, तुम्हें बहुत हर्ट हुआ, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। किस पे गुस्सा आ रहा है बोलो, बताओ मुझे, तुमको किस पे गुस्सा आ रहा है? अच्छा, उस पे गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है? अच्छा, तुम्हारे साथ नाइंसाफी, उसने तुम्हें बोलने का भी मौका नहीं दिया और वो बस ताने पे ताने मारे जा रहा था, तुम्हें ब्लेम गेम कर रहा था, जो सुन के तुम्हें बहुत दर्द हुआ। हाँ श्रेया, मैं भी समझती हूँ कि तुम्हें बहुत दर्द हुआ, चलो और चिल्ला के उसके ऊपर सारा गुस्सा निकाल देते हैं। एंड देन अगेन यू शाउट and you release your anger. ये करने से फायदा क्या होगा आप लोग मुझे बताओगे अभी? अगर मैंने ये किया और गुस्सा इंस्टेंटली निकाल दिया, फायदा क्या होगा? और किसी और पे नहीं, अपने आप के साथ अगर इस तरह से हमने रिलीज किया गुस्से को, क्या फायदा होगा? रिजेंटमेंट नहीं रहेगा अंदर, रिजेंटमेंट अंदर फील नहीं रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, थॉट प्रोसेस फिर और कुछ सोच पाएंगे इंस्टेड ऑफ। राइट? यस, सो क्लैरिटी रहेगी थॉट प्रोसेस में, आप और कुछ सोच पाओगे, रिजेंटमेंट अपने भीतर नहीं रहेगा। ब्यूटीफुल। व्हाट एल्स? आपको क्या लग रहा है और क्या हो सकता है? और आप लोगों को, दूसरों को क्या लग रहा है, क्या हो सकता है अगर इस तरह से हमने अपने गुस्से को निकाल दिया तो क्या हो सकता है? क्या लग रहा है? अगर अपनी गलती हो तो अपने को महसूस होगी शांत होने के बाद।
हम्म हम्म गुस्सा होने का हम्म गुस्सा होने को चांस ही नहीं मिलेगा अगर ऐसा सब करेंगे। हम्म मैंने किया है तो मुझे पता है कि होता है, ये सब अच्छा होता है। राइट। सो अगर मैं अपनी गलती भी होगी तो मैं इनका कहना है राजश्री का कि मेरी अपनी भी गलती होगी तो मैं इजीली उस गलती को स्वीकार कर पाऊंगी और अपने आप पे ही माफ कर पाऊंगी कि ठीक है मैंने भी गलती की हुई है तो मैं ही माफ करती हूँ अपने आप को। जब इस तरह से हम प्रोसेस करते हैं तो अपने अंदर सी व्हाट आर ऑल दिस इमोशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल अवर इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। हमारे भीतर वी आर ऑल इमोशनल बीइंग and we have taken birth of a human to experience. We are all actually spiritual being and we have taken birth as a human, and then in this human form we are experiencing emotions, and then we are getting involved in the dramas and traumas of the life. But we are actually spiritual being experiencing human life. So ये जो ह्यूमन बीइंग है ऑल्सो इज ऑल्सो एन इमोशनल बीइंग, और बिना इमोशंस का आदमी कैसा रहेगा? कैन यू थिंक अबाउट इट कि आपको बस कोई इमोशंस ही नहीं हो, कैसा रहेगा आपका लाइफ? आपने किसी को देखा है जिंदगी में, ऐसे लोगों को देखा है जिसके पास कोई इमोशंस ही ना हो? इमोशंस There is one neurological disorder जिसमें emotions नहीं feel होते हैं, जिनका I think frontal cortex में कुछ damage होता है. They can't experience emotions. exactly. But if that is a defect, right? But if we are with a normal human being, have you ever seen a person without emotions? इवन टेररिस्ट भी होगा ना जो एकदम क्रूअल से सबको धड़ 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 उड़ा रहे हैं, उसके अंदर भी तो इमोशंस हैं। भले उनका दिल में करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन नफरत की इमोशंस है जिसकी वजह से वो धड़ 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 सबको उड़ा सकता है। बिना इमोशंस का कोई भी काम नहीं हो रहा है। एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सपीरियंसिंग सर्टेन इमोशंस each every time. So emotions are energy in motion. तो जब भी हम खुशी होती है, देखो जब भी आप खुश होते हो तो क्या करते हो? आपको हंसने का मन होता है, आपको लगता है चलो किसी को फोन करके किसी को शेयर करते हैं, वाओ ये हुआ, वाओ वो हुआ, एंड यू आर बबलिंग, यू आर डांसिंग, यू आर सिंगिंग, you are in your own world and you are happy, right? And that is what you, there is a fulfillment, sense of fulfillment inside when we are enjoying, having fun and love, right? But at the same time, on the other side of the spectrum, when we are angry, we are feeling sad, what happens? There's lot of emotions. हमारा जो खून है ना, एक तो बहुत जोर से बढ़ने लगता है पूरे शरीर में, इतना जोर से बहने लगता है खून, जिसकी वजह से एक्सेस एनर्जी आ जाती है और जिसकी वजह से सब कुछ तोड़ फोड़ करने का मन करता है। देखो लोग गुस्से में क्यों थप्पड़ मारते हैं? कोई प्रेम में थप्पड़ नहीं मारता, बट गुस्सा आता है तो थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी एक्सेस एनर्जी बहने लगती है, खून इतना जोर से बहने लगता है और उसको बाहर निकलना है, इसीलिए तोड़ो फोड़ो, दरवाजा धाड़ धाड़ बंद करो, चिल्लाओ चीखो। कि अब आप मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल ये पढ़ा था कि जब आप गुस्से में हो तब आपको क्यों जोर से बोलना पड़ रहा है, एंड व्हेन यू आर इन लव, even with whispers you hear. Physically, actually, energetically, you are in love with that person, and the flow of energy is so beautiful that you are connected with that heart, and even in whispers or even in silence, the other person is listening to you. But when you are in anger, there is so much distracted energy, and you are so much physically, even if you are near, energetically you are so far away that you have to speak louder so that that person can understand and hear you. तो ये जो गुस्सा है, जब हमें गुस्सा आता है तो हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, because there is lot of excess energy which is flowing inside at that time. तो ये समय पे अगर इस गुस्से को हम चैनलाइज नहीं करते हैं, रिलीज नहीं करते, तो हमारे अंदर स्टोर हो जाता है। हमारे अंदर स्टोर होने से
हम और ऐसी एनर्जीज इकट्ठा करते हैं जिसकी वजह से डिजीजेस शुरू हो जाता है, साइकोसोमेटिक डिजीजेस जिसको कहते हैं। सो माइंड, बॉडी और सोल का बहुत गहरा कनेक्शन है। हम इस पे आज गहराई में बात नहीं करेंगे, लेकिन बात वो है कि जब हम इमोशंस को हमें सबसे पहले रिलीज करना बहुत जरूरी है, हमारे सिस्टम में से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, सामने वाले ने एक गाली दी तो हम 4 गाली देते हैं, एंड हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, हम जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं, एंड वी आर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन. We are not responding, we are reacting. There is a difference between respond and reaction. Reaction मतलब क्या, एकदम ईंट का जवाब पत्थर से दूंगे, तूने एक गाली दी मैं 4 गाली दूंगी, और इस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, हम पावर स्ट्रगल में आ जाते हैं, तू मैं हो जाती है, टग ऑफ वॉर हो जाता है. And that's how we are, because we are not channelizing good energy, which is excess energies, and we end up in fights and power struggle, and nothing works. ना आप समझते हो ना वो समझते, आप भी दुखी वो भी दुखी, and nothing works. But at that moment, if we become aware and we use this mirror, and in front of mirror, if we are releasing all these energies, and then we start talking to ourselves, we are validating our emotions कि मैं खुद सुन रही हूँ अपने आप को, मैं मिरर में अपने आप को देख के अपने आप से बातें कर रही हूँ, मैं अपनी ही अच्छी दोस्त बन रही हूँ. Then जो intensity of that emotions है वो mellows down, and it mellows down क्योंकि उस समय पे इवन आप मेडिटेशन करोगे, आपका नहीं होने वाला मेडिटेशन. आपके अंदर एनर्जीज ही ऐसी है कि आपका मेडिटेशन में कैसे आपका मन होगा, मन इधर उधर भटकेगा. मेडिटेशन पे भी आप उस पर मेडिटेशन करोगे कि उसके साथ बदला कैसे लूं, उस पर पूरा मेडिटेशन होगा. आपका मेडिटेशन उस पे होगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप अभी क्या होगा, उसने ये बोला है. तो आप मेडिटेशन पे भी आपका ध्यान नहीं रहेगा. आप बोल रहे हो कि आप मैं मेरे ब्रेथ को देखूंगा, देख सकते हो ब्रेथ, लेकिन वो ब्रेथ भी तब देख पाओगे जब आपके इमोशनली आप बैलेंस हो जाओगे. और सिर्फ अगर ब्रेथ देखते जाओगे तो आप कहाँ खो जाओगे, ब्रेथ कहाँ और आप कहाँ, कहीं और पहुंच जाओगे आप. क्योंकि आपका वो रहेगा कि उसने आपके ऊपर इनजस्टिस हुआ क्यों, और आपका पूरा मन उसी में घूमता रहेगा, गोल 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 घूमता रहेगा, और वही टेप रिकॉर्डर रिपीट मोड पे चालू रहेगी. सो उस समय पे पॉज लेके, if we think that first of all let me clear these energies, आपकी, just repeat after me, my emotional health is my responsibility. My emotional health is my responsibility. My emotional health is my responsibility. जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हम बहुत ध्यान से खाना खाते हैं ना. आप सड़ा हुआ एप्पल खाते हो, आप सड़ा हुआ आम खाते हो, आप सड़ा हुआ सब्जी खाते हो. हम नहीं खाएंगे, हम देखेंगे कि वो अच्छा है, and then we will eat, right? Same way, all these emotions are taking our mind space and taking our body space. हर एक बॉडी के हर एक सेल्यूलर लेवल में हम इमोशंस को इकट्ठा कर रही जा रही है, सेल्यूलर मेमोरीज में ये सारी इमोशंस इकट्ठी हो जा रही है. एंड उस समय पे हम सिर्फ वो सोचे कि मैं मेडिटेट करके ये सारे इमोशंस को हील कर दूंगी. करके देखिए, अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, वेरी गुड, कंटिन्यू विथ योर प्रैक्टिस. बट मोस्ट ऑफन वी आर नॉट, बिकॉज हमारे अंदर बहुत सारा खून खोल रहा है हमारा. आइदर हम सैडनेस में इतने डूबे चले जा रहे हैं, सैडनेस में और सैड हो रहे हैं, और उदास हो रहे हैं, और उदास हो रहे हैं, और मैं बेचारी और मैं बेचारा वाला ड्रम बजा रहे हैं. या हम गुस्सा में उतना गुस्सा आ रहा है, उतना गुस्सा आ रहा है कि बदले में हमारा ड्रम बजा रहा है कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी. Nothing is working at that time. At that time, when you look into the mirror and release your emotions, either it is anger or sadness or mind is restless or anxiety, start releasing it, looking in the mirror and release it. And then you start talking to yourself and then see the difference. जो आपकी इंटेंसिटी होगी
वो काफी कम हो जाएगी। एंड इफ यू विल कंटिन्यू डूइंग दैट, हो सकता है कि आपका मन शांत हो जाए। और जब वो मन शांत होगा उसके बाद आप मेडिटेशन में बैठिए। जब वो मन शांत होगा उसके बाद आप ब्रेथ पे भी फोकस कर सकते हो। वो मन शांत होगा उसके बाद आप शायद वो बंदे के पास जाके शांति से बात कर सकते हो कि देखो ये चीज हुई जिसकी वजह से मुझे ये लगा। देखो बहुत डिफरेंस है। जब आप गुस्से में जाके किसी के साथ बात करो तो वो भी सामने वाला भी चार सुनाने ही वाला है, उसके भी कान बंद होने वाले हैं। लेकिन जब आपका मन शांत है और मन शांत होने के बाद आप वो बंदे के साथ जाके बात करते हो विदाउट ब्लेम गेम, यू आर जस्ट टेलिंग दैट ये जो चीजें हुई जिसकी वजह से मुझे ये महसूस हुआ एंड दिस इज व्हाट आई नीड एंड आई वांट, there are high chances that other person also will listen to you peacefully. And if you think that even that person is not listening to you peacefully, again we are using mirror and we imagine that that person is in the mirror and we start talking, you know, this is what happened, you know, yesterday, and you said you wanted me to do this but I couldn't do it, and you were angry and even I was angry because I was so tired, you know, so I'm so sorry that I couldn't do something for you because I was really tired, but you did not understand and you wanted me to do it that time only, but I was really tired and I couldn't do it, and then we were upset and it is really disturbing my peace of mind. What I want is I want to be peaceful, I want you to be peaceful, and let us solve this amicable. I really love you, I really respect you, but let us solve it amicably in peace, and I love you and I love you and I love you. Start talking this way even with that person in the mirror and just see the difference. You have to talk loudly, you have to make mirror as your friend. And this is what Louis did. जिस फादर ने उसको फिजिकली अब्यूज किया था उसी फादर को उसको माफ करना था जो उसके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत गुस्सा था, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। और वो भी सोच रही थी कि काश मेरा फादर भी मुझे दूसरों के फादर की तरह मिलता जो मुझे इतना प्यार देता और सिक्योरिटी देता, जो नहीं था उसके लिए। बट उस समय पे जब उसने मिरर वर्क करके अपनी ये सारी नेगेटिविटी को रिलीज किया, and then she used to meditate, and then she used to love herself, and then once you are at peace with yourself, and then tell yourself that wow Shreya, I love you so much, you are such a brave girl, you are so courageous that you could manage yourself so beautifully well, and you were balanced, and wow, and I love you and I love you and I really love you. And even if there was a mistake of yours, still I love you. Still मैं तुमने भले तुम्हारे से गलती भी हुई, भले तुम फेल भी हुए, still उसके बावजूद मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें अपनाती हूँ. So this is the process where we look into our eyes and we heal ourselves and we make mirror as our friend. और अगर ये चीजें जो है ना करके अनुभव के तौर पे करके देखनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं सारी थियोरी बता रही हूँ आपको। हम जो हमारी मिरर वर्कशॉप होती है उसमें हम मिरर के साथ थियोरी में नहीं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंशियल लेवल पे प्रैक्टिस करते हुए हम अपने आप से बातें करते हुए अपने आप को हील करते हैं। And we keep telling yourself that wow, I love you darling, I love you and you are so beautiful. And then we get connected to the, if you will do this and if you really look into your eyes, it will be an open eye meditation. जैसे शिल्पा ने कहा कि शुरुआत में कि मुझे लगा कि I am a soul, I am not this body, and you will experience this with an open eye meditation, looking in the mirror, that I am not this body, I am that infinite soul who has infinite power. और Can I say something? yeah, मेरी लाइफ में ऐसा है कि मुझे हमेशा लोग ट्रिगर करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। तो उसके लिए मैं मिरर वर्क कैसे करूँ? राइट। सो मिरर वर्क से सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले मिरर में जाके जितना भी गुस्सा आ रहा है ना, पहले गुस्सा को थूकना है। समझो आप एक जैसे आपने बोला कि मुझे उस बंदे से साइलेंटली शांत से बात करना है क्लियर करने के लिए, और मैं वैसे करने भी जा रही हूँ, बट
फिर ऐसा है कि वो लोग सामने से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मैं आपको पहले, सबसे पहले मैं वो बोल रही हूँ, हमने सबसे पहले क्या किया, अपने आप को पहले हील करना है, अपनी सारी इमोशंस, अपने कचरों को बाहर निकालना है। गुस्सा आपको आया है, राइट? तो काम किसने करना है? सबसे पहले मुझे करना है, मेरा गुस्सा को थूकना है। समझो कि आपने ऐसा कोई फ्रूट खा लिया जो खाते खाते आपको लगा अरे एप्पल तो अंदर से सड़ा हुआ निकला, आप ऐसे ऐसे एप्पल खा रहे हो, एप्पल तो अंदर सड़ा हुआ निकला, अभी आपको पता है सड़ा हुआ है, तो क्या आप फिर भी चबा के अंदर डालोगे? आप क्या करोगे? उसको थूक दोगे ना, आप उसको अंदर नहीं जाने दोगे। तो सेम वे, जब आपको गुस्सा आ रहा है, जब आपको नफरत आ रही है, जब आप उदासीन फील कर रहे हो, तो व्हाट इज योर रोल? उसको थूकना है और उसको रिलीज करना है। एंड हाउ डू यू रिलीज इट? यू But रिलीज इट looking in the mirror, and with open eyes you look into mirror and you release all of it, and तुम्हें काली फेस बना के या अपने आप से बाद में बातें करके you have to release it. I do this, but एक मैं उससे बात भी करना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ, बट ऐसा है कि they are not responding from their side. So how should I do that? Talk in the mirror, you don't go them, go to them. Okay. That is what I said, that afterwards if they are not open enough to talk with you, that is also fine. Mirror is our friend. And imagine that those people are there and you are talking with those people, again looking into your eyes. Why again we are looking into our eyes? Because we are not lying and we are honest with ourselves. जब हम अपनी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, हम हमारा लॉजिकल माइंड, ईगो माइंड को बीच में नहीं आने देते हैं, और हम हमारे सेल्फ, हमारी आत्मन उनसे बात करती है. So this is such a beautiful and profound work. And I will tell you that you have to practice this with a mentor who has already walked this path. हम ये सारी चीजें सुनते हैं, अपने आप से कर सके बहुत ही अच्छी बात है. Otherwise, you have to do it with some mentor who has walked this path, who have practiced it with their life, with other clients. And then when you do it, it makes a huge difference. जैसे योगा भी हम क्यों क्लासेस ज्वाइन करते हैं योगा के, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं, आप उसको क्यों फॉलो नहीं करते हो? हमेशा कोई भी मेंटर को फॉलो करके उसका हाथ पकड़ के जब हम चलते हैं, इट बिकम्स इजी, and we are doing the right practices in a right way. Then once you become master of that technique, then you may do it on your own. But initially when you are practicing it, if possible, choose a mentor and then do it with the mentor. It works in a better way. So let us release our all emotions and let us be very truthful. क्योंकि ये मिरर वर्क के द्वारा हम हमारे सारे जजमेंट्स को सीज करते हैं. कई लोगों ने मुझे पूछा कि व्हाट इज सेल्फ लव. मैंने कहा मिरर वर्क से सेल्फ लव बढ़ता है. कई लोगों ने पूछा व्हाट इज सेल्फ लव. क्या सेल्फ लव में हम अपने आप सेल्फिश नहीं बन जाते हैं? अगर अपने आप को ही प्रायोरिटी देके अपने आप से ही हम प्यार करने लगे, तो क्या वो एरोगेंस नहीं हो जाएगा? क्या वो सेल्फिशनेस नहीं हो जाएगा? क्या हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं बन जाएंगे? कई लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने कहा कि जब हम मिरर वर्क करते हैं हमारा सेल्फ लव बहुत बढ़ जाता है. तो ये मुझे क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट इज सेल्फ लव? एंड डू यू थिंक दैट सेल्फ लव से हमारा सेल्फिशनेस बढ़ जाएगी, हमारे अंदर का एरोगेंस बढ़ जाएगा? डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? नो, सेल्फ लव से एरोगेंस नहीं बढ़ेगा. कैसे होगा? क्या होगा सेल्फ लव? सेल्फ लव से सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ेगा. we'll be more comfortable interacting with others, so maybe dealing with others will be easier for others also to interact with. ब्यूटीफुल. सेल्फ लव से हमारा सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा. जब हम मिरर में अपने आप से बातें कर रहे हैं, हम हमारे सारे फॉल्ट्स भी बता रहे हैं. हम वो नहीं बता रहे कि वो सामने वाला बंदा ही गुनहगार है या सामने वाला बंदा ही है. हम अपनी भूल भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे से जो गलतियां हुई वो भी हम स्वीकार कर रहे हैं. तो
ये जो सेल्फ लव की जर्नी है, लोगों को लगता है सिर्फ ब्यूटी पार्लर में जाके बैठो और मसाज करवा लो और मूवी देखने बैठो और दैट इज सेल्फ लव, और अपना मी टाइम पे चले जाओ एंड दैट इज सेल्फ लव. दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ सेल्फ लव. दैट इज नॉट द ओनली सेल्फ लव. सेल्फ लव इज सीजिंग ऑल द जजमेंट्स. मतलब there is no judgment, not for you also and not for others also, and that is self love. And when can you do that? When you don't have judgment. Generally what do? We judge now all the time. ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है, ये appreciated है, ये not, this is not appreciated, this is approved, this is not approved, this is accepted, this is not accepted, this is good, this is bad, this is right, this is wrong. हम हमेशा दो बास्केट में सारी चीजों को जज करते रहते हैं और लेबल्स लगाते रहते हैं, राइट? Labels. Thank you, Shilpa, for your active participation. I completely agree. And now, even within 4 minutes, we will also end the session. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. you. So basically, हम self love में we are accepting ourselves just the way we are. We are completely and deeply accepting ourselves just the way we are. कि even मुझे पता है कि मेरे अंदर ये गलतियां हैं, उसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ. मुझे पता है कि मेरे अंदर ये भी अच्छे गुण हैं, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ. हमारे हर एक जजमेंट्स को we seize all the judgments in self love. When there is no judgment, it is completely self love. Otherwise हम अपने आप के साथ भी शर्तों वाला प्यार करते हैं. अगर तू गुस्सा नहीं होगी तब मैं तुम्हें प्यार करूंगी, अगर तुम सक्सेसफुल होगी, अच्छा पैसा कमाया, तब मैं तुम्हें प्यार करूंगी, अगर तुम सबको खुश रख सकी तब मैं तुम्हें प्यार करूंगी, अगर सब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तब मैं तुम्हें प्यार करूंगी. Is it self love centered? No. हमारा बहुत बाजारू व्यावहारिक प्यार हो गया है अपने आप के साथ भी. So in self love we drop all the conditions and we just love ourselves unconditionally, बिना शर्तों वाला प्यार. That is true self love, where we accept ourselves. हम स्वीकार भाव में आ जाते हैं, हम जैसे हैं वैसे अपने आप से प्यार करते हैं. That is true self love. और जब मिरर है, जो हम, जैसे मैंने कहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन अंदर से आवाज आएगी कि तू डरपोक है, तो मैं वो भी बोलूंगी कि हाँ मैं कई बार डरपोक हूँ, फिर कई बार मुझे डर लग रहा है, उसके बावजूद भी श्रेया मैं तुम्हें अपनाती हूँ और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ. अंदर से आवाज आएगी कि श्रेया ये क्या है, तुम बूढ़ी हो रही हो, तुम्हें पिंपल्स आ रहे हैं, तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, ये क्या है, यू आर नॉट ब्यूटीफुल. और मैं अपने आप को बताऊंगी कि ओके आई नो कि मुझे पिंपल्स आ रहे हैं, ओके आई एम अवेयर दैट मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, ओके आई एम अवेयर दैट मैं बूढ़ी हो रही हूँ. उसके बावजूद मैं अपने आप को प्रेम से अपनाती हूँ और प्रेम से स्वीकारती हूँ और मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ. दैट इज सेल्फ लव. कि इंस्पाइट ऑफ अंदर की आवाज जो आई उसको हम ठुकरा नहीं रहे, हमसे छुपा नहीं रहे हैं, उसको अंदर की आवाज को भी एक्सेप्ट करते हुए हम अपने आप को कह रहे हैं कि इंस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस आई लव यू एंड आई लव यू एंड आई एम विथ यू. सो दैट इज व्हाट द सेल्फ लव इज अबाउट, दैट वी आर कनेक्टिंग विथ अवर. जैसे मैंने कहा था कि बच्चा रोएगा भी, गिरेगा भी, पर उसके बावजूद वो अपने आप को प्यार करेगा. Same way, self-love is all about loving ourselves and respecting the way we are, respecting our being, our existence, respecting our essence, and that is self-love. So that's how लुइस हे ने मिरर वर्क के द्वारा अपने आप को प्यार भी किया. लुइस हे ने मिरर वर्क के द्वारा फॉरगिवनेस किया. लुइस हे ने मिरर वर्क के द्वारा ग्रेटिट्यूड भी किया. And that's how mirror has become her way of life. Talking in the mirror has become, the moment वो सुबह में उठेगी वो सबसे पहले मिरर में जाके अपने आप को बोलेगी, लुइस आई लव यू एंड टेल मी हाउ कैन आई लव यू मोर, टेल मी हाउ कैन आई लव यू मोर लुइस, हाउ कैन आई लव यू मोर टुडे. और इस तरह से जब भी कोई अच्छी चीजें आती थी उनकी लाइफ में होती थी, वो पहले मिरर के पास जाके बोलती थी, वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब एंड आई एम सो हैप्पी एंड ये लेट्स सेलिब्रेट. और वैसे ही अगर कई बार उनकी गलतियां होती थी और चीजें उनके हिसाब से नहीं भी होती थी,
तो भी वो मिरर में जाके अपने आप से बात करती थी कि आई नो दैट हमने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, या मुझसे गलती भी हुई, उसके बावजूद लुइस, आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू just the way you are. And that is how she has developed her self-love. She has developed her relationship with mirror, looking into mirror and becoming friend of her own self and becoming friend with our own Atman, knowing and talking to our Atman. Slowly, slowly आपका रिश्ता इतना गहराई वाला बन जाएगा. You will start feeling it. It's an experiential process. जैसे कि कोई रसगुल्ला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई बोलेगा वो सफेद सफेद है, स्पॉन्जी स्पॉन्जी है, सॉफ्ट सॉफ्ट है, वाव. कोई बोलेगा वाव क्या मीठा है, मुंह में जाके ही पिघल जाता है जब मुंह में डालते हैं, वाव वाव. कितना भी कोई तारीफ करे वो रसगुल्ले की, आपके लिए वो थियोरी रहेगी जब तक आप पहली बार वो रसगुल्ला आपके मुंह में डालोगे नहीं और उसका अनुभव करोगे नहीं, तब तक वो सिर्फ आपको लगेगा कि गोल सफेद लड्डू है. बट जैसे मुंह में डालते हो, उसका अनुभव करते हो कि वाव क्या रस है, क्या जूसी है, क्या मीठा मीठा पानी निकल रहा है, क्या सॉफ्टनेस आ रही है, और मुंह में जाते ही पिघल के अपने अंदर गल्प मैं कर रही हूँ, एंड देन यू विल से टू ओके दिस इज व्हाट रसगुल्ला इज अबाउट. एंड इट इज सेम वे whatever we talk about, any practice, any method, any theory, we have to put ourselves into those practices, practice for minimum 3 to 6 months, experience the results, and then we can say that this method works for me, or maybe this method is not for me. But it is an experiential journey. So I invite all of you that please, whenever you get opportunity, do mirror work, talk to yourself, and explore mirror work with self-love. So thank you, thank you, thank you, thank you very much. Thank you, and I love you, and I love you, and I love you. Thank you. मैं अपनी फेवरेट हूँ. यस वंशिका, आप अपनी फेवरेट हो. थैंक यू.